students, today we will discuss India's relation with China. India and China were great powers in Asia before the arrival of the Western imperialisms. And India's and China relations were very friendly, and slogan of Hindi Chini Bye Bye was very popular. But in 1950s onward, both the nations were involved in the differences on the basis of the on the basis of Tibet problems and border issues in Arunachal Pradesh and Aksai Chin area of Ladakh. Chinese attack in 1962 and Chinese contribution to Pakistan nuclear programs, and these are the main issues on which there was the dispute with the India and China's. And one is the border dispute and long standing dispute over the shared of 4,000 kilometer Himalayan borders that led to the 1962 Indo-China's war. India says China occupies 38,000 square kilometer of territory on the Aksai Chin plateau in the western Himalaya, while China claims its right on nearly 90,000 square kilometer of land in the Arunachal Pradesh. And these are the border disputes. And next is the disputes on Tibet. India has given asylums Dalai Lama, who fled the region after a failed 1959 uprising against China, and Tibet claimed it was independent until China occupied in 1950, and it also claimed that Tibet has been off its territory for centuries. कि इसके बारे में जो है जो चाइना हमेशा से ये क्लेम करता रहा है कि जो इसकी तिब्बत की टेरिटरी है वो उनकी है. एंड देन द रिलेशन बिटवीन द चाइना एंड इंडियाज बिगेन टू इम्प्रूव स्लोली फ्रॉम द मिड 1970 में इनके रिलेशन थोड़े अच्छे स्टार्ट हुए, एंड दे टॉक टू रिसॉल्व द बॉर्डर इश्यूज in 1981, and then Rajiv Gandhi visited to China in 1980 and Atal Bihari Vajpayee visit in 2003 have accommodated both countries to maintain peace on the borders. But now in these matters are not solved, and the two countries failed to resolve their border disputes, and both countries has established military infrastructures along border areas, and a deadly clash between the Indian and the Chinese troop China's built new structure near the site of the clash, and which left 20 Indian troops dead. And now the relation of our country with China's are not so good. So हमारे जो country के relation है वो China's के साथ अच्छे नहीं हैं. And 29 June 2020 the government of India has banned 59 Chinese app, and these all these shows that the relations between China's and India's are not so good. And now Japanese very famous brands of Japan's such as Sony, Panasonic, Canon, Suzuki, Honda, Mazda, these have making high technological products. कि ये चाइना ने बहुत हाई टेक्नोलॉजिकली चाइना जो बहुत जापान जो है बहुत ही ज़्यादा आगे है, एंड जापान हैव वेरी फ्यू नेचुरल रिसोर्सेज. जापान के पास बहुत ही कम जो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बट फिर भी जो है एंड जापानीज इम्पोर्ट मोस्ट ऑफ इट्स रॉ मटेरियल. ज़्यादातर क्यों यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज कम है, इसलिए ज़्यादातर जो रॉ मटेरियल्स हैं वो जापान जो है इम्पोर्ट करता है. Even then it progressed
रैपिडली आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसने बहुत ज़्यादा जो रैपिडली जो है इंक्रीज हुआ है, उसकी प्रोग्रेस हुई है। एंड इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इकनॉमी इन द वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड में जो सेकेंड लार्जेस्ट इकनॉमी दैट इज़ द जापान। एंड इट ओनली द एशियंस मेंबर ऑफ द G18, इट इज़ द 10th मोस्ट पॉपुलर नेशन इन द वर्ल्ड। एंड जापान इज़ द ओनली नेशन, जापान ही वो एक जो है नेशन थी जहाँ पर किसके लिए उसने सफ़र किया, दैट सफर्स द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द डिस्ट्रक्शंस कॉज्ड बाय द न्यूक्लियर बम्स। जो न्यूक्लियर बम से जो वहाँ पर जितना भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, वो जापान ही एक ऐसी कंट्री थी जिसने इसको सफ़र किया। एंड इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रेगुलर बजट ऑफ द UN, कि सेकेंड लार्जेस्ट है कि UN का बजट के अकॉर्डिंग भी ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट है, क्योंकि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 20% ऑफ द टोटल, 20% टोटल जो है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है इन द UN में किसका है, दैट इज़ द जापान। एंड जापान हैज़ ए सिक्योरिटी अलायंस विद US since 1951 as per Article 9 of the Japanese Constitution. The Japanese military expenditures only 1% of its GDP, कि जापान जो है उसकी अपनी मिलिट्री जो फोर्सेस है उस पर वो जो एक्सपेंडिचर है ओनली दैट इज़ द एक्सपेंडिचर ऑफ द 1%, कि अपनी GDP का 1% ही जो है वो मिलिट्री पे एक्सपेंड करता है। फिर भी जो है इट इज़ द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, कि फिर भी ये जो 4th जो है लार्जेस्ट है इन द मिलिट्री में, सबसे जो लार्जेस्ट 4th नंबर पे है, दैट इज़ द जापान। सो दीज आर द अल्टरनेटिव सेंटर्स एंड the topic of this chapter, the alternative center of power. The chapter of the name of this chapter is new centers of powers. अब इसके चैप्टर का नेम जो है ऑल्टरनेटिव सेंटर्स नहीं है, बट इज़ द नेम ऑफ द न्यू सेंटर्स ऑफ पावर्स हैं। और इसमें ये है कि इसमें जितने भी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द USSR की डिसइंटीग्रेशन के बाद जो न्यू सेंटर ऑफ पावर जो हैं वो आए और जो कि US हेजमनी को ख़त्म कर सकती हैं, वो इसमें जो डिस्कस किया गया। और इसमें सबसे पहले था यूरोपियन यूनियंस एंड सेकंड था एशियंस एंड थर्ड वन इज़ द राइज ऑफ चाइनाज इकोनॉमिक्स जो है कैसे राइज अप हुई। एंड फोर्थ वन इज़ आवर रिलेशंस विद चाइना। जितने भी हमने चैप्टर्स करे हैं उसमें हर एक में जो है इंडियाज़ रिलेशंस के बारे में बात हुई है, जैसे आवर रिलेशन इन द USA, आवर रिलेशन इन द USSR, नो आवर रिलेशंस विद पाकिस्तान and in this chapter our relations with China, and also here we discuss Japan. Now there is a new topic in this chapter, that is the BRICS. BRICS is also a इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक ही बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन जो है ब्रिक्स बना है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, एशियाज, ओपेक एंड G7 एंड ऑल दीज आर द इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। इसी को देखकर जो है ये जो है ब्रिक जो है ये बना है। और इसमें मोस्टली जो है 4 कंट्रीज़ पहले जो थी ब्रिक में इसमें शामिल थी। इट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नो दीज आर द 5 members of this organization, and that the topic that is a new topic, and we will discuss this topic tomorrow. Thank you.